MS Word Styles and Object. About the chapter to apply built-in styles, to create a new paragraph style, to insert word art, to create a text box, to work with shapes, to insert clip art, to insert a picture from a file, to format a picture, to apply shadow, to insert a symbol. We have already learned about formatting, which includes changing and arranging text in a document to make it attractive. When we format our text, we can change font, font size, font style, adjusting line spacing, setting, margins, tab text, alignment, list, creations, etc. A set of formatting characteristics such as font name, color, size, paragraph, alignment, and spacing is called styles. Some styles even have borders and settings. By contrast, when we use styles to format our document, we can quickly and easily apply a set of formatting choices consistently throughout our document. For instance, instead of talking three separate steps to format our heading as 16 point, bold, Cambria, we can get the same result in one step by applying the built-in heading 1 style. We do not require to remember the characteristics of the heading 1 style. जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में फॉर्मेटिंग के बारे में जाना, बेसिक्स। बेसिकली फॉर्मेटिंग है क्या? फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस when we applying font size, font style, adjusting spacing, settings, margins, apply alignment, colors, etc. ये सारे जब हम अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं तो ये कहलाता है फॉर्मेटिंग। A set of formatting characteristics such as name, font name, color, size, paragraph alignment, and spacing is called styles. और इस सारे को जब आप कलेक्टिवली अप्लाई करते हैं मिला करके तो ये स्टाइल्स कहलाता है। Microsoft Word provide different types of ready-made styles. Here given example, heading 1, we can apply heading 1 ready-made styles. Next, by default in MS Word, the body text of our document is automatically formatted with the normal क्विक स्टाइल। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली फॉर्मेट होता है, डिजाइंड होता है क्विक स्टाइल से। फॉर्मेटिंग अप्लाइड इन MS वर्ड of
three types. Character style. It affects the selected text within a paragraph. Paragraph style. It controls all aspects of a paragraph's appearance such as text alignment, line spacing, tab stops, borders, and can contain character spacing. इसमें आप फॉर्मेटिंग तीन तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। अब जनरली फॉर्मेटिंग के अंतर्गत दो टूल्स हैं हमारे पास, दो ऑप्शंस हैं, कैरेक्टर स्टाइल्स एंड पैराग्राफ स्टाइल्स, जिसमें आप विद इन अ पैराग्राफ डिफरेंट कैरेक्टर्स पे स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज पैराग्राफ स्टाइल्स। हियर वी कैन अप्लाई विद all paragraphs to a different styles. Next topic is to apply built-in styles. If you want to apply built-in styles, also called ready-made designs or predefined styles, click within the text you like the a style to apply. Firstly, select the text where you want to apply styles. Click the style dialog box launcher and open the style task pane. स्टाइल डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक कीजिए तो स्टाइल टास्क पेन अपीयर हो जाएगा। इन दिस टास्क पेन वी कैन opted additional styles for the document and change styles. Observe the change and view how the text appears with the new heading style. इसमें आप देख सकते हैं जो भी आपने स्टाइल अप्लाई किया है अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट पे, तो इसका व्यू एंड अपीयरेंस ऑफ ए टेक्स्ट आप देख सकते हैं, इसका इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज टू क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ स्टाइल। टू क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ स्टाइल, in order to create a new heading style, select text with the heading styles you like to alter. Then click the style dialog box launcher and open the styles task pane. Then click on new style button located at the bottom of the window. Simply आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, देन स्टाइल डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक कीजिए तो क्या होगा, स्टाइल टास्क पेन अपीयर हो जाएगा। देन क्लिक ऑन न्यू स्टाइल बटन, इसके बाद न्यू स्टाइल बटन पे क्लिक कीजिए। आफ्टर दैट क्लिक क्रिएट न्यू स्टाइल व्हेन फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स विल ओपन। जैसे फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ उसमें आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू स्टाइल। Then rename the style and make the formatting changes to it, such as bigger font size, different style and different color. Simply आप नेम चेंज कर दीजिए उस स्टाइल का और उस पर जो भी स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक साइज बड़ा करना चाहते हैं, अलग स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, अलग कलर अप्लाई करना चाहते हैं, तो इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्लिक ऑन ओके बटन, इसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। देन सेलेक्ट दिस स्टाइल फ्रॉम क्विक स्टाइल गैलरी टू अप्लाई न्यू स्टाइल। देन आपको क्विक स्टाइल गैलरी पे क्लिक करके उस स्टाइल पे क्लिक करना है जिसको आप अप्लाई करना चाहते हैं। Next one is to insert word art.
to insert word art. Word art is meant by text styling utility. It enables us to create a stylized text with various special effects such as texture, outlines, and many other manipulations which are not available through the standard font formatting. वर्ड आर्ट एक टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए स्पेशल यूटिलिटीज है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है हमारा MS वर्ड, जिसमें आप अपने टेक्स्ट पे स्पेशल इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे टेक्सचर, आउटलाइन, पैटर्न्स। ये सारे स्पेशल इफेक्ट्स आप अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, जो हमारे जनरल फॉन्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन में अवेलेबल नहीं होते। अगर आप वर्ड आर्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब इन द टेक्स्ट ग्रुप, क्लिक वर्ड आर्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए एंड देन क्लिक द वर्ड आर्ट स्टाइल दैट यू विश। जैसे वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा स्टाइल आ जाएगा इस तरीके से। देन जिस स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं वर्ड को, टेक्स्ट को, उस स्टाइल पे क्लिक कीजिए। आफ्टर दैट द एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट विंडो विल अपीयर। एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट विंडो अपीयर होगा, उसमें आप टेक्स्ट टाइप कर दीजिए। टाइप द टेक्स्ट एंड चेंज द फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स। सिंपली उस विंडो में आपको टेक्स्ट टाइप करना है और फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को चेंज कर दीजिए। देन क्लिक ओके, उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है। ब्यूटीफुल चेंज विल अपीयर इन द टेक्स्ट, और अच्छे से सुंदर तरीके से टेक्स्ट आपके स्क्रीन में अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज to create text box, an object which you can add to your Microsoft Word document to emphasize or set of text is called a text box. टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है आपको। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स एक ऑब्जेक्ट है जो आप वर्ड डॉक्यूमेंट को एम्फेसाइज करने के लिए ऐड करते हैं। ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स, अगर आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो सिंपली गिवन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। क्लिक टेक्स्ट बॉक्स एंड देन क्लिक ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। सिंपली टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कीजिए और फिर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कीजिए। आफ्टर दैट रिसाइज द टेक्स्ट बाय ड्रैगिंग इट हैंडल्स। उसके साइज को आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं हैंडल्स को ड्रैग करके। इन ऑर्डर टू ऐड टेक्स्ट टू अ टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स एंड देन टाइप और पेस्ट टेक्स्ट। इसके बाद आपको क्या करना है? टेक्स्ट ऐड करना, उसमें टाइप कर सकते हैं या पेस्ट भी कर सकते हैं आप किसी टेक्स्ट को। इस तरीके से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। नेक्स्ट टॉपिक इज टू वर्क विथ शेप्स। टू वर्क विथ शेप्स इन Microsoft Word, there is a set of ready-made shapes that can be used in documents. We can fill these shapes with color, rotated, resized, flipped, etc. Microsoft Word बहुत सारे रेडीमेड शेप्स का कलेक्शन अवेलेबल है। In Microsoft Word is a set of ready-made shapes that can be used in a document. बहुत सारे रेडीमेड शेप्स का कलेक्शन है जिसका यूज आप कर सकते हैं
और उस शेप में कलर फिल कर सकते हैं, शेप को रोटेट कर सकते हैं, शेप को रिसाइज कर सकते हैं, शेप को फ्लिप्ड कर सकते हैं, आइदर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। बहुत सारे शेप्स होते हैं लाइक सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्टार, हार्ट। अगर आप इस शेप को इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो सिंपली इंसर्ट और ड्राइंग कैनवास ऑन द इंसर्ट टैब इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप, क्लिक शेप्स और पॉपअप मेनू शोज वेरियस शेप्स। आपको सिंपली इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है इलस्ट्रेशन ग्रुप में, तो शेप्स और शेप्स पे क्लिक करना। जैसे ही शेप्स पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेनू अपीयर होगा, इसमें बहुत सारे शेप्स अवेलेबल होते हैं। इसके बाद क्या करना है, क्लिक द शेप दैट यू लाइक, जो शेप आपको पसंद है उस पर क्लिक कीजिए। देन क्लिक एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट एंड देन ड्रैग टू प्लेस द टेक्स्ट, और इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी लोकेशन पे लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके ड्रैग कीजिए, तो ये शेप ड्रॉ हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट, एडिंग टेक्स्ट इन अ शेप। आप चाहते हैं जो भी आपने शेप ड्रॉ किया है उसमें टेक्स्ट ऐड करना। जैसे यहाँ एक क्लाउड ड्रॉ किया गया है और उसमें लिखा गया इट्स रेनिंग, तो सिंपली आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो आपको एडिंग टेक्स्ट इन अ शेप का यूज करना होगा। सेलेक्ट एंड राइट क्लिक द शेप दैट यू लाइक टू ऐड टू टेक्स्ट, उस शेप्स पे क्लिक कीजिए तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उस पर राइट क्लिक कीजिए और ऐड टेक्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। क्लिक ऐड टेक्स्ट एंड देन टाइप योर टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके आप जो टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं टाइप करें। इस तरीके से आप अपने शेप्स के अंदर टाइप कर सकते हैं, नेम डाल सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं। थैंक यू।